Good morning, student. I welcome you all to the English medium class of 11th Physics. So, we'll continue with the topic of gravitation, and today we'll do with orbital speed and period of revolution of satellite. So, what is a satellite? Just as various planets revolve around the sun, in the same way few terrestrial bodies revolve around these planets. These bodies are called satellite. मतलब जो पृथ्वी के चारों ओर घूमे, जैसे सूर्य के चारों ओर जो घूमते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं आपके प्लैनेट्स, ठीक है। और जो पृथ्वी के या प्लैनेट्स के चारों ओर घूमे उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं सैटेलाइट्स. सो फॉर एग्जांपल, मूव evolved around the earth in a nearly circular orbit. Earth is a planet and moon is a satellite of the earth. The mass of the earth is nearly 80 times the mass of the moon. Therefore, although earth itself revolves around the sun, but to study the motion of the moon around the earth can be treated to remain stationary. Right? It's a very important fact. Orbital speed of satellite. What is orbital speed? When a satellite such as moon revolves in a circular orbit around the earth, a centripetal force acts upon the satellite. This force is the gravitational force exerted by the earth on the satellite. ठीक है, कौन सा फोर्स है जिससे उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से. सो इन दिस फिगर यू कैन सी a satellite of mass m is revolving around the earth with a speed of v0 in a circular orbit of radius r. The centripetal force of satellite is mv square upon r. Let m e be the mass of the earth. The gravitational force exerted by the earth on the satellite will be gmem but upon r square, where g is the gravitational constant. As the gravitational force provides the required centripetal force, we have gmem over r square is equal to mv square upon r. So if we solve this, what we'll get? Let me solve it for you. Got g mem over r square is equal to mv नॉट स्क्वायर अपॉन r. सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स से मिल रहा है. m से m कटा, r स्क्वायर से एक r कटा, मेरे पास बचा जी एम बी इज इक्वल टू एक r को मैं इधर ले जा रही हूँ, r v नॉट स्क्वायर. तो v नॉट स्क्वायर कितना होगा? जी एम ई ओवर r. तो v नॉट होगा रूट ऑफ जी एम ई ओवर r. ये मेरा वैल्यू आया. लेट आर ई बी द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड एच बी द हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ. ठीक है. देन द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी आर इज इक्वल टू आर ई प्लस एच. ये वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो वी नॉट कितना होगा? जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच का रूट. इफ़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस कितना है? स्मॉल जी है. तो जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर में से हम क्या कर सकते हैं? जी एम ई को ले ले, आर को उधर ले जाए तो फार्मूला क्या बन जाता है? किस में से मैंने निकाला? इस चीज़ को देख लीजिए एक बार. हमें पता है स्मॉल जी जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर. ठीक है. इसको अगर मैं इधर ले जाऊँ तो जी एम ई इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ से वैल्यू हम डाल दें तो यहाँ से मेरा एक और फार्मूला भी ये बन जाता है. वी नॉट इज इक्वल टू आर ई जी ओवर आर ई प्लस एच का रूट. अगर ये दो इक्वेशंस देख लें, इन्होंने इक्वेशन 1 और 2 बोला है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 गिव्स द स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब जिससे वो घूम रहा है, of the satellite in its orbit. It is evident from these equations that the speed of a satellite depend only upon its height. Height पे निर्भर करती है above the earth surface. Greater is the height of the earth of the satellite above earth surface, smaller is the speed of the satellite. जितना height ज़्यादा होगी उतनी उसकी speed कम होगी. Because the speed of satellite does not depend upon the mass of the satellite, therefore two satellites
of different masses revolving in the same orbit around the earth have the same speed. भार पे कोई असर नहीं है, तो दो अगर एक ही ऑर्बिट पे घूम रहे हैं तो स्पीड एक होगी, क्योंकि उनके भार चाहे एक भारी हो चाहे हल्का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. If the satellite is orbiting very close to Earth's surface, then h is negligible compared to RE. In this case, putting h is equal to 0, अगर बहुत ही पास है तो हमें क्या मिलेगा, V0 is equal to GME over RE. तो V0 होगा G रूट ऑफ RE. ठीक है, ये वैल्यू हमने कहाँ से ली है, ये वैल्यू हमने GM की जगह क्या लिखा, कैसे किया सॉल्व हमने, देखिए हमारे पास ये आया ना, दो फार्मूले बने थे ना, दो फार्मूले में इन्होंने h को यहाँ से रिमूव कर दिया है. हम चाहे तो इसको देख सकते हैं. देखिए मेरे पास कितना आ गया, V0 आ गया है GME ओवर RE. अगर मैं इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दूँ तो GRE स्क्वायर ओवर RE का रूट, तो ये RE से ये कट जाएगा, तो रूट ऑफ GRE बचेगा. तो दूसरा फार्मूला हमें यहाँ से मिल गया है. इसमें अगर मैं G की वैल्यू रखूँ, R की वैल्यू रखूँ, तो मुझे कितना मिलेगा, यहाँ से मुझे 8 किलोमीटर के आसपास का मिलेगा. Thus the speed of satellite revolving very close to Earth surface कितना होता है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वो मूव करता है. नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट. आर्टिफिशियल सेटेलाइट क्या होते हैं, व्हेन अ सेटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट नियर द अर्थ सरफेस, देन इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है, 8 किलोमीटर पर आवर. देयरफॉर इफ वी सेंड अ बॉडी a few hundred kilometer above the earth's surface and give it a horizontal velocity of 8 kilometer per second by means of multi stage rocket. ठीक है, मल्टी स्टेज मतलब डिफरेंट स्टेजेस होते हैं रॉकेट में, उस हिसाब से हमने उसको मल्टी स्टेज रॉकेट से भेजा है. देन द बॉडी इज प्लेस्ड इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. सच अ बॉडी को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल सेटेलाइट कहेंगे. इफ़ अ पैकेट बी रिलीज फ्रॉम द सेटेलाइट, इट विल नॉट फॉल ऑन द अर्थ. क्यों, वापस क्यों नहीं आएगा अर्थ पर, बिकॉज वो रिवॉल्व करता रहेगा सेम ऑर्बिट विद द सेम स्पीड जैसे कि सेटेलाइट का है. इफ़ द हाइट ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस बी सच, इस तरह से हाइट दी जाए कि टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज एक्जैक्टली इक्वल टू द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जो अर्थ की है, दैट इज 24 घंटे 24 आवर्स ऑफ द एक्सियल मोशन ऑफ द अर्थ, देन द सेटेलाइट वुड अपीयर स्टेशनरी ओवर अ पीरियड ऑफ अर्थ इक्वेटर. ठीक है, वो स्टेशनरी लगेगी. इट वुड बी synchronous with the Earth's spin. Such a satellite is known as geostationary satellite. मतलब उसकी स्पीड और अर्थ की स्पीड एक जैसी है, क्योंकि एक ही समय ले रही है, एक ही जगह, एक ही डिस्टेंस कवर करने में. तो ऐसा लेकर जैसे दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, रुके तो दो साइकिल अगर बराबर एक साथ चले, एक ही रूट पे चले, एक ही स्पीड से चले, तो आपको ऐसा लगेगा ना कि दोनों एक दूसरे को एक ही जगह देखेंगे जैसे दोनों के दोनों रुके हुए हैं. तो वही लगता है कि दोनों एक दूसरे के सामने हो गए. मतलब अगर अर्थ के सामने कोई सेटेलाइट है तो अर्थ के सामने ही रहेगा, क्योंकि वो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है तब. तो ये कहाँ का यूज़ होते हैं, रिफ्लेक्ट टीवी सिग्नल्स एंड टेलीकास्ट टीवी प्रोग्राम्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर. In order to calculate the height of a geostationary satellite, we use the following expression for the period of revolution of a satellite at a height h above the earth surface. क्या है ये, हमने डायरेक्ट फार्मूला लेंगे. t क्या होता है, t का डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास है बेटा, हम इसको इस्तेमाल करेंगे और मैं आपको ये डेरिवेशन करके दिखाती हूँ. देखिए t इज इक्वल टू 2 पाई रूट RE प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन GRE स्क्वायर. मैं इसको क्लियर अप कर ले रही हूँ, मुझे लगता है अब आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो वैल्यू निकालेंगे स्क्वेयरिंग कर देंगे इसके, तो मेरे पास कितना आएगा, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, सॉरी ये रूट हट गया है, RE प्लस एच का स्क्वायर अपॉन GRE स्क्वायर. ठीक है, सॉरी यहाँ क्यूब था, आई एम सॉरी क्यूब था, ये क्यूब. अब यहाँ से ले लीजिए t स्क्वायर इंटू GRE स्क्वायर इज इक्वल टू RE प्लस एच का होल क्यूब. ठीक है, और नीचे आपका क्या आएगा, ये 4 पाई स्क्वायर. तो RE प्लस एच कितना आया, t स्क्वायर GRE स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3. अब इसमें t की मान हम 24 घंटे 24 आवर मतलब
24 इंटू 60 इतने सेकेंड, कितना हो गया ये 86,400 सेकेंड। आर ई को हम 6.37 × 6 मीटर और जी को 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डालेंगे तो मेरी आर ई प्लस एच का मान कितना आएगा, ये आएगा 4,200 किलोमीटर। दिस इज़ द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। द हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस इस कितना होगा, इसमें से हम इतना माइनस कर देंगे जितना अर्थ का रेडियस है, तो ये मेरा मान आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। 10 फॉर अ सैटेलाइट टू अपीयर स्टेशनरी इट मस्ट बी प्लेस्ड इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, जिसकी हाइट कितनी होनी चाहिए 35,830 35,830 किलोमीटर ऑफ द इक्वेटर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पार्किंग ऑर्बिट, एक नया शब्द है, पार्किंग ऑर्बिट भी कहते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स यूज्ड फॉर टेलीकास्टिंग एंड प्लेस्ड इन पार्किंग ऑर्बिट्स। द ऑर्बिटल स्पीड अगर हमें जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की निकालनी है तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमको आर्टिकल करना है वो है आपका एस्केप एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी। क्या होता है, इफ़ वी प्रोजेक्ट अ बॉडी अपवर्ड देन आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट द बॉडी रिटर्न ड्यू टू ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है, आप बॉल डालते हो ऊपर से नीचे आ जाती है ग्रेविटेशन की वजह से। इफ़ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, स्टार्टिंग स्पीड धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएंगे, देन इट रिटर्न आफ्टर reaching greater and greater height. Ultimately at a certain velocity of projection the body will go out, बाहर निकल जाएगी ग्रेविटेशन फील्ड से, और किसकी, अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से, और वो वापस कभी नहीं आएगी, इट विल नेवर रिटर्न टू द अर्थ। दिस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी को हम क्या कहेंगे, एस्केप वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी जो उस बॉडी को प्रोजेक्ट करने के लिए चाहिए उसे कहेंगे हम एस्केप एनर्जी। वी हैव रेड, अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल जब जीरो से हम इन्फिनिटी पर लाते हैं तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितनी आती है हमारे पास, U = G_MEM/r², फाइन, जहाँ पर ME इज़ द मास एंड RE इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ। देयरफॉर इन ऑर्डर टू टेक अ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से अगर अर्थ पे ला रहे हैं तो ये फार्मूला है, अर्थ से अगर इन्फिनिटी जाएंगे तो यही फार्मूला हो जाएंगे, बस साइन क्या हो जाएगा इसका, प्लस का साइन हो जाएगा। सो इट इज़ एविडेंट दैट इफ़ वी थ्रो अ बॉडी ऑफ मास m with such a velocity that its kinetic energy is G_MEM/r², then it will go in space outside the gravitational field of the earth. Hence escape velocity कितना हो जाएगा, G_MEM/r²। The velocity given to the body is escape velocity, वो कितनी है मान लेते हैं VE है। देन द काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमें किसी ग्रेविटेशन की वजह से मिलेगी। तो अब ये हम कैसे करेंगे सॉल्व, ये देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे कि जो मेरी ग्रेविटेशनल एनर्जी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वही आपकी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होनी होती है। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास हाफ VE² किसके बराबर आएगा, GME/r। तो VE किसका है, कितना हो जाएगा, √2, क्योंकि 2 पर जाएगा, GME/r। ठीक है, अब हमें पता है G = GME/re², तो यहाँ से वैल्यू लगाइए, GM का कितना आएगा, GME = RE² × G। ये वैल्यू हम जब यहाँ रखेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, VE = RE² G/RE, ये कटा तो मेरे पास बचा एक 2 चला आ रहा है, 2RE × G। ये मेरा फॉर्मूला आया। इसमें अगर मैं वैल्यू डालूँ G की और R की तो ये 11.2 आता है। Therefore, if we throw a body upward with a velocity of 11.2 km/s, then it will never return to the earth. We have seen above that in order to send a body to a height of 6.37 × 6 meter equal to the radius of the earth from the earth, we have to throw it with a velocity of 7.9 km/s. अगर अर्थ के रेडियस के बराबर फेंकना है तो 7.9 से करना पड़ेगा, और अगर इन्फिनिटी पे, ठीक है, इन्फिनिटी से या थोड़े पहले, सेंड इट टू इन्फिनिटी ओनली
little large velocity of 11.2 km is sufficient. The reason is that at height increases, gravitation attraction of the earth goes on decreasing more rapidly. अब अगर मैं जो है रिलेशन निकालना चाहूँ ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी में तो कितना आता है, दोनों को आप बटे कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। ये एक तरह से होमवर्क है, आप होमवर्क के रूप में इसे करिएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग इतना ही करेंगे। आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।